Morning dear students. Today's our topic is animal kingdom, that is chapter 4. In this chapter there are two topics. First of all, basis of classification. The animal classification is based on the type of coelom, the type of blood circulatory system, either open type or closed type, respiratory system, their symmetry. They are either bilateral symmetry or lateral symmetry or radial symmetry. Circulatory system, reproductive system, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive system. These are the basic need to classify the animal kingdom. So first of all, we studied about the level of organization. Animal, either they made from a single cell or multicellular body. That means the body type is cellular level. If the body is made by tissue, that means the level of organization is tissue. And if the body is made by the organ, different type of organ made the organism body, that means the level of organization is organ level. So अलग अलग जीव जंतुओं में आप देखेंगे, स्मॉल जो जीव एनिमल्स हैं उनमें आप देखेंगे जो माइक्रोस्कोपिक हैं उनमें सेलुलर लेवल पाए जाते हैं. अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनमें जो रहता है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. और जब सिलेंटेट्स की बात करेंगे हम तो उनमें टिश्यू लेवल, क्योंकि जो मीसेनकाइमा है या हम कह सकते हैं कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों का फॉर्मेशन होने लगता है और वो टिश्यू बना ले. तो इनमें आप देखेंगे हायर लेवल पर सिलेंटेट्स में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. सिलेंटेट्स के बाद एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का है, इन सब में ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हो गए हैं. एनिलिडा है सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज दे प्रेजेंट प्लाज्मा, दे हैव हीमोग्लोबिन एंड द ब्लड कलर इज रेड. सो different type of organ present in the phylum Annelida, Arthropoda, Mollusca. So they have organ level of organization. Next, इसके बाद हम बात करेंगे organ system. देखिए organ तो है, organ बाद में आकर system भी बना लेते हैं और उसमें digestive system है, respiratory system है, circulatory system है, ये सब मिलकर organ system level of organization बना लेते हैं. निश्चित ही ये आप देखेंगे कि जो सबसे हायर ऑर्गेनिज्म है लाइक कॉर्डेट्स, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, दे हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी आर कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, एंड समटाइम टेल इज प्रेजेंट. द नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, आइदर ओपन टाइप और क्लोज टाइप. Open type, that means the body fluid are filled in the complete body, that means the tissue are completely bathed in the fluid or liquid and there is no artery and vein are present. But in closed type of circulatory system, the blood flow inside the tubes, they are called vein, arteries or capillaries. Next type of organization level is symmetry. The symmetry, that means the organism either divided into 2 equal parts, that means they have bilateral symmetry. The organ is divided into various from their radii and at 5 or 4 part equally distributed or divided the organism, that means the body is radially symmetrical. And if the body is neither radially nor bilateral, there is no symmetry at all, that means the body is asymmetrical. Asymmetrical जो सिमेट्री है वो स्पॉन्जेस में पाई जाती है. रेडियल सिमेट्री सीलेंटेट्स में, टीनोफोरा और इकाइनोडर्म्स में है, और जबकि बायलेटरल सिमेट्री जिसमें कि हमारे जैसे इक्वल बीच में से 2 भाग हो जाते हैं, ये सब में आपको दिखाई देगी. आर्थ्रोपोडा में है, मोलस्का में है, ठीक है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल, इन सब में ये सिमेट्री पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं.
इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लेवल पर है कि उनमें जो शरीर की बॉडी जो है वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों से बनी है या केवल दो से बनी है। तो यदि वो दो से बनी है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बनी है, दैट मीन्स डिप्लोब्लास्टिक ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बॉडी बनी है, इसका एग्जाम्पल है सिलेंटेड्स। और इसके बाद सिलेंटेड्स के बाद प्लेटिहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, फिश, एम्फीबिया, reptiles, birds, mammal. Their body is formed from three germinal layer, that means ectoderm, mesoderm and endoderm. So they are called triploblastic type of organ classification organization. The next level is the coelom. Coelom, that means body cavity. Presence or absence of body cavity decide either organism is coelomate और एसीलोमेट। यदि सीलोम नहीं है, बीच में पूरी बॉडी कंप्लीटली कैसी है, एकदम पैक है, तो हम कहेंगे वो बॉडी कैसी है, एसीलोमेट है। प्लेटिहेल्मिन्थीज में जो चपटे कृमि रहते हैं प्लेनेरिया, इनमें सीलोम नहीं पाई जाती, तो दे आर कॉल्ड एसीलोमेट। कुछ में जो है वो सीलोम आधी बनी होती है और आधी अभी पूरी तरह से नहीं बन पाई है। तो इस तरह की सीलोम को हम क्या कहते हैं, सीडोसीलोम। तो ये जो सीडोसीलोम आप देख रहे हैं, ये सीडोसीलोम आपको दिखाई देगी, किस में दिखाई देगी, ये सीडोसीलोम आपको दिखाई देगी एस्कैरिस में, एस्केलमेंथिस में। यानी ये पाउच के रूप में मेसोडर्म उपलब्ध है, बीच बीच में पाउच के रूप में है, पूरी तरह नहीं बन पाई है। लेकिन यदि पूरी तरह एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है, तीनों लेयर है, ठीक है। तो ये एक्टो भी है, मेसो भी है और एंडो भी है, तो ये कहलाएंगे आपके कंप्लीट ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और ये कहलाएंगे सीलोमेट एनिमल हैं, ठीक है। तो आपने तीन प्रकार के पढ़े, सीलोमेट, एसीलोमेट और सीडोसीलोमेट। इसके बाद है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के बाद आप देखेंगे कि यदि बॉडी बाहर से और अंदर दोनों तरफ से कंप्लीट डिवाइड है, इस तरह के सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। स्पेरिंग जैसा है, मेटामेरिज्म कहते हैं इसको। बॉडी बाहर और अंदर दोनों तरफ से डिवाइड है, लेकिन केवल बाहर से डिवाइड है, अंदर डिवाइड नहीं है, तो उसको हम मेटामेरिज्म नहीं कहेंगे, बॉडी अनसेगमेंटेड ही कहलाएगी, जैसे कि मोलस्का में। इसके बाद नोटोकॉड और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।